Yes, Mr. Siddharth Patel. First of all, you introduce me yourself. Okay. Yes, yes, sir. I am Siddharth Patel from Surat, Gujarat. I have recently completed my BTech from Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat. I was born and brought up in Surat. I have also completed my schooling from Surat itself. During my four years of bachelor's, I have done multiple projects and internships such as clean energy based charging system, cooling load estimation, and exergy energy analysis. And apart from the engineering, my hobbies are playing cricket, volleyball, and cycling. That's all about myself, sir. Okay. So, like, which subject you have prepared? Sir, my subject priorities are thermodynamics, strength of material, heat transfer, and fluid mechanics. What is thermodynamics? Sir, thermodynamics is basically energy in transit, where we studies like thermi and dynamics. Thermi means energy, and dynamics means in flow. थोड़ा So, वॉइस sir, लो आ रहा है basically, आपका, माइक को नजदीक करिएगा. hello, sir. Yes, go on. So, sir, thermodynamics basically means energy in transit, where we study the how energy will transfer from one state to another state. Like thermi means energy, and dynamics means the transfer of energy. Okay. That's it. So, how thermodynamics basically different from heat transfer? Sir, in thermodynamics, basically we are not considering how heat transfer takes place. Like what is the form of heat transfer? In heat transfer, sir, we study all the temperature profiles, like form of heat transfer, conduction, convection, what is happen. And in thermodynamics, we basically interested in energy and work interactions. Okay, fine. So, now my very first question is, what is zeroth law of thermodynamics? Sir, zeroth law of thermodynamics states this, where suppose A body is in is in thermodynamic equilibrium with B body, and B body is in thermodynamic equilibrium with C body, then A and C bodies are in thermodynamic equilibrium with each other. Sir, that's all about zeroth law of thermodynamics. Yes. अब मेरे पास में एक 1000 मिलीलीटर का मिल्क है बेसिकली. ओके. Yes, मतलब yes, आई sir. मीन से 1 लीटर राइट. Okay, sir. ओके. 1 लीटर होगा ना ये कि नहीं होगा? 1000 ml, सर. हाँ सर, 1 लीटर हो जाए. पक्का? यस. Yes, sir. ओके. तो बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है कि Yes, sir. एक बॉटल है जिसमें 1000 मिलीलीटर का मिल्क है, जो कि मेंटेन्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस. एक Yes, sir. दूसरी बॉटल है, उसमें मेरा 1500 ml है, बेसिकली 1.5 लीटर मिल्क है उसके अंदर में, विच इज ऑल्सो मेंटेन्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस. क्या यहाँ पे मेरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड रहेगा क्या? सर, 1000 डिग्री का वाटर है सर. हाँ, मिल्क. 1000 ml में दोनों वाटर मिल्क है है, सर. दोनों मिल्क है. दोनों दोनों मिल्क है सर. यस. ओके. यस सर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड रहेगा. अच्छा, कैसे रहेगा, क्यों रहेगा? सर, बिकॉज अगर हम देखें तो दोनों सर बेसिकली 15 डिग्री सेल्सियस पे है. हाँ. और अगर स्टेटिक है तो सर उसमें बेसिकली कोई वर्क इंटरेक्शन तो होगा नहीं. हीट इंटरेक्शन हो सकता है सर दोनों के बीच, लेकिन दोनों अगर 15 डिग्री सेल्सियस पे है तो हीट इंटरेक्शन का भी कोई इशू नहीं है. तो सर इट विल बी रिमेन्स इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. नाउ दिस इज वाटर राइट, एंड इट इज मिल्क. अब बताइए, यस सर. क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड रहेगा क्या हाँ. इस केस यस में? सर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी वैलिड रहेगा, क्योंकि सर बेसिकली सेम थिंग, द टेम्परेचर आर सेम एंड देयर बोथ आर इन स्टैटिक कंडीशंस. तो यस सर, इट विल बी वैलिड. ओके. नाउ माय अदर क्वेश्चन इज, मान लीजिए अभी ये 1000 ml का वाटर है. ओके. यस सर. 1000 ml यस सर. का वाटर है. ओके. यस सर. ठीक है. ये 1000 ml का मेरा वाटर है, और ये मेरा मेंटेन्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस. फाइन. ओके. ओके सर. ये है मेरा, इट इज 10 ml. 10 ml ऑफ, बेटा मैं अच्छे से लिख देता हूँ,
ओके, 1 मिनट दीजिएगा। सो माय द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर सिद्धार्थ पटेल कि यस सर। मेरा एक कंटेनर है जिसमें मेरा 1000 ml वाटर है। ओके, यस यस सर। 1000 ml वाटर है, और जो मेरा यस सर। दूसरा कंटेनर है जिसमें मेरा 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके Both the सर। containers are maintained at 30 degrees Celsius. Now tell me, ओके is सर। Zureth law of thermodynamics valid? अगर सर दोनों मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में है और पूरा तो 30 मिक्स डिग्री कर रहे हैं सेल्सियस पे है, अपन कंपार्ट। मिक्स कर रहे हैं सर। हाँ, ओके, तो सर अगर हम सर मिक्स करेंगे तो सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड रहेगा, लेकिन कब तक? हमें इस मिक्सिंग को इनफाइनाइट टाइम लेना पड़ेगा, कि हाँ, जब तक उसमें होमोजेनिटी और इक्विलिब्रियम मैनेज नहीं होता जाए। जब इक्विलिब्रियम मैनेज हो जाएगा तब सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड रहेगा। हेलो सर। यस यस। इस केस में आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है, पहली बात। ओके सर। ओके, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे केमिकल इंट्रैक्शंस जो हो गए, केमिकल इंट्रैक्शंस जो सल्फ्यूरिक एसिड में करेगा, तो हाँ। वो कवर यस अप सर। करना है, ठीक है। सर ओके, बट इफ वी टॉक अबाउट इनफाइनाइट टाइम एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, तभी सेम नहीं होगा सर? यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल का खेल आता है। ओके, उसको मैं हाँ एक्सप्लेन ये करता हूँ बाद में। sir, बट I have thought about it, but I'm not going into that part. I'm सर just a मैकेनिकल physical. इंजीनियर ना। No sir, I'm हाँ yes sir, mechanical engineer, यस, but तो मैं I बताता हूँ। have. वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का केस है वहाँ पे, ठीक है। हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Yes sir. थोड़ा आइडियल गैस के बारे में बताइए आप, क्या होती है आइडियल गैस, द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। ओके सर। सर जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो सर जो भी रियल गैस है जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है हम्म, और जिसके मोलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स और उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, वो सर फॉल करेगा आइडियल केस के कंडीशन में। और जो रियल गैस है जिसका जेड का वैल्यू अवे फ्रॉम विसिनिटी, यानी कि एक से ज्यादा या एक से कम है, वो सर हमारे रियल गैस है, जिसमें सर मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम और अट्रैक्शन फोर्स दोनों को सर हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उनको भी अकाउंटेबिलिटी में रखते हैं। वेरी गुड। और सर आइडियल गैस के रियल लिए। गैस को, अगर मुझे रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना हाँ होगा, सर। क्या करना सर होगा। सर बेसिकली देर आर टू कंडीशंस। जब सर रिड्यूस्ड प्रेशर टेंड्स टू जीरो, मतलब प्रेशर काफी लो होगा तब, और रिड्यूस टेम्परेचर ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, यानी कि टेम्परेचर काफी हाई होगा तब, उस कंडीशन में सर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और तब हम सारे इक्वेशंस यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। ओके, कभी आपने, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस सर। कभी आपने बीपी चेक कराया है। यस सर, आई हैव रिसेंटली चेक इट। ओके, बीपी चेक कराया था। हाँ। यस। बीपी चेक कराते वक्त नर्स क्या करती है या फिर डॉक्टर क्या करता है, बेसिकली आपका सपोज दिस इज योर हैंड, राइट। यस सर। दिस इज योर हैंड, राइट। यस सर। तो यहाँ पर वो आपका बेसिकली वो रैप कर देता है ना, रैप कर देता है, यस राइट। सर। ओके, यस सर। यस। बेसिकली वो एयर जैकेट होता है, राइट। इट इज यस एयर सर। विथ प्रेशर गेज। यस ओके, सर। एंड इट हैज, अब ये जो आपका बेसिकली, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो एयर यस। जैकेट होता है इट इज कनेक्टेड विथ प्रेशर गेज, राइट। प्रेशर गेज। यस सर। कनेक्ट होता है ना, जो दिखता है, रीडिंग हम्म। दिखता है ना। हाँ 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 इस सर। प्रेशर गेज में आपका मैनोमीटर होता है कि हाँ नहीं, मैनोमीटर होता है क्या, क्या होता है। सर बेसिकली वो अपना मरकरी दिखाते हैं उसमें। मर्क्यूरी मैनोमीटर होता है। ओके, मरकरी मैनोमीटर। ओके, ओके। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये आपका हाथ है, ये आपका यस हाथ है सर। जिसमें यस। एयर प्रेशर बैग लगा हुआ है, जिससे हम्म। बीपी चेक हो रहा है, बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। यस सर। ओके, और ये एयर बैग आपके आर्म्स में लगा हुआ है, राइट। यस सर।
इट इज, ये जो आपका एयर बैग है ये मर्क्यूरी मैनोमीटर के साथ में कनेक्टेड है। मुझे ओके सर। मुझे पता करना है, और इसी के साथ में आपका स्टेथोस्कोप भी, जो स्टेथोस्कोप आपका कनेक्टेड होता है, स्टेथोस्कोप राइट, है ना, ओके। स्टेथोस्कोप जो होता है। हाँ मुझे सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में बताइए क्या होता है। सर, कैन यू रिपीट द व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर सर? सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ओके। आई वांट टू नो व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सर, actually I have listened these words for the first time, but if you give some hint, I will try to answer your question. सिस्टोलिक प्रेशर तो बहुत, आपने बीपी चेक कराया ना, Yes sir. ठीक है, बीपी हाई, बीपी हाई होता Yes है, sir. बीपी लो होता है ना, बोलते हैं ना हाँ बीपी हाई हाँ होता है, बीपी हाँ लो होता है, हाँ सर, क्या हाँ होता सर। है वो प्रेशर हाँ क्या। सर, लो प्रेशर में बेसिकली क्या होता है कि बॉडी के बॉडी में जो मतलब जिस तरह का मतलब जो ब्लड फ्लो के रिगार्डिंग सर जो मिनरल्स है वो कम हो जाते हैं, तो सर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और सर हाई ब्लड प्रेशर में मिनरल्स और वो ज्यादा होता है, तो सर ज्यादा प्रेशर होता है मतलब। तो इस टर्म में बताइए आप, इन्हीं के टर्म्स में बताइए। सर, सर जब लो प्रेशर होता है तो सर डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है, और सब हाई प्रेशर में डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है। तो बेसिकली जब आपका हार्ट पंप करता है, आपका हार्ट जब यस। बीट करता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है, इट इज द हाईएस्ट प्रेशर व्हेन द हार्ट इज बीटिंग। ओके सर। ओके, इट इज द हाईएस्ट प्रेशर व्हेन द हार्ट इज बीटिंग, बट डायस्टोलिक प्रेशर इज दैट प्रेशर व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग, ओके सर। और इट इज द लोएस्ट प्रेशर यू कैन से, ओके सर। लोएस्ट प्रेशर और व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग। ओके सर। Okay, I think so it has been clear. Okay, ओके now ओके। can you tell me like both this pressure are measured in what? सर इट मेजर इन बार सर। Bar? No, it's यस not सर, bar. और एम ऑफ एच जी और बार सर। Yes, it is measured in mm of Hg, right? ऑफ एच जी, यस सर, Not यस। bar. Okay, bar हम ओके, लोग हाँ यस। हाँ हाँ, सॉरी सर। सर एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू टेल टॉर सर, सॉरी। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मर्क्यूरी मैनोमीटर में, मर्क्यूरी है यस सर। राइट, क्यों हम यस लोग सर। इसके अंदर वाटर क्यों नहीं यूज करते हम लोग टू मेजर आर बीपी और समथिंग। हाँ सर, बेसिकली अगर हम वाटर यूज करेंगे तो वाटर का सर डेंसिटी मरकरी के हिसाब से कम है, तो हमें काफी लार्ज मतलब बड़ी साइज का ट्यूब लेना पड़ेगा फॉर वाटर। और मर्क्यूरी के लिए सर डेंसिटी ज्यादा है, तो कम साइज में भी हो सकता है। और मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर भी काफी लो है सर, तो उसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स आने की इश्यूज आर नेग्लिजिबल, सो दैट्स वाई सर। ओके, फाइन। ओके, चलिए एंड करते हैं हम लोग। ओके, ओके सर। ओके सर। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, आपने अपने अंदर में, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, सर, एक तो ये है कि व्हाट डिड यू थोड़ा रियलाइज। सर, हाँ सर, थोड़ा सर टाइम लेके और थोड़ा ज्यादा सोच के और आंसर दे सकते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि जल्दी जल्दी में हड़बड़ी हड़बड़ी में आंसर दे रहे हैं। और और सर, बताइए, वेरी गुड, फर्स्ट आपने और ऑब्जर्व किया, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, और सर ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि सर एकदम ही मतलब हार मान गए हैं। हम्म, थोड़ा सोच के थोड़ा कुछ लड़ने का ट्राई करना चाहिए सर, अगर नहीं भी आता है तो। जैसे वो सर प्रेशर प्रेशर वाले में मैंने किया। मैंने ऑनेस्टली सर ये पहली बार सुना था, दो वर्ड। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, आपने हिंट मांगा, दैट वाज वेरी गुड थिंग, फाइन। यस सर। और बताइए, और क्या मतलब, क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चेंज करने की जरूरत है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में सर थोड़ा देखने की जरूरत है, लाइक जब क्वेश्चंस की डिफिकल्टी मतलब जो ट्रिकी होता जाता है, तब सर थोड़ा और क्रिटिकल थिंकिंग उस पर देने की जरूरत है। यस, वेरी गुड, तो क्रिटिकल सोचना आपको जरूरी है ना। यस सर। मेरा यहाँ पे मकसद यही है कि बच्चों को मैं क्रिटिकल सोच पाऊँ। देखो, यस। क्वेश्चंस वोंट बी रिपीटिंग, कितने भी यस। बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग रट के जाए, कुछ भी करके जाए, इस यस साल, सर। इस साल अगर मैं बात करूँ, ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिया था,
कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं वो, ठीक है। Yes, sir. तो ये सभी को पता है, कोरा पे बहुत क्वेश्चंस अवेलेबल है, एंड माय मोटो इज नॉट दैट कि वो क्वेश्चंस करवाऊं मैं, है ना। नहीं सर, और वो क्वेश्चन का सर वो कुछ अगर वो ऑथेंटिसिटी भी क्वेश्चंस नहीं है। आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वो आंसर कर देंगे, है ना। यस सर, यस बट सर। मेरा मेरा कुछ अलग चीज है। मार्गदर्शन एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, यस सर, यस हमें इसीलिए हमारे सिलेक्शंस होते हैं यहाँ से, ओके, यस कि हम लोग डेफिनेट। कुछ अलग तरीके से करवा रहे हैं प्रिपरेशन, है ना। यस भले यस लोग हमारा कॉपी कर रहे हैं, अब हमारा लोग कॉपी कर रहे हैं, है ना। यस ठीक सर, है भाई। दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड। यस। यस, उसके बाद बाकी आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा। आपका डिलीवरी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन में देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। यस क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छा है, आपका सोचने का तरीका थोड़ा बहुत और इस पे फोकस करिएगा। जब यस मैं सर। मेरे मॉक इंटरव्यू, सारे के सारे मॉक इंटरव्यू देख लीजिए, अवेलेबल है अपने एप्लीकेशन पे, हाँ। सारे देखिए। हर आ हर वक्त मैंने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे। माय यस सर। सिंगल क्वेश्चन इज नॉट रिपीटेड, राइट, अ सिंगल यस क्वेश्चन इज नॉट रिपीटेड। एवरी यस टाइम सर। अ न्यू क्वेश्चन कम, एवरी टाइम अ न्यू कॉन्सेप्ट कम्स, यस एंड देयर सर। आर नंबर ऑफ वेरिएशंस व्हिच अकर्स। हाँ सर, मुझे बेसिकली यही चेक करना था कि क्वेश्चन का जब सर डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ता जाएगा ना, तो सर कैसे अप्रोच रहने वाला है। अप्रोच व- इंटरव्यू में हाँ। कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कितने रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। आपका अप्रोच मैटर करता है, आप कितने सही यस अप्रोच, आपका अप्रोच कितना करेक्ट है। यस सर। यस तो सर। आज आप दोनों के केस में मैंने देखा कि आपका अप्रोच बहुत सही है, क्लियर है। यस। लिटरली आई एम अमेज्ड आप लोगों के इंटरव्यू लेकर, मतलब लिटरली आई एम अमेज्ड कि आप लोगों का मैंने थैंक इंटरव्यू लिया। थैंक एंड यू थैंक यू ऑल थैंक द यू बेस्ट, वेरी मच। मुझे भरोसा है कि आप लोग इंटरव्यू क्रैक करेगा, 100% आप लोग क्रैक करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू तो मेरे भरोसे को तोड़िएगा मत। सर। श्योर सर, श्योर, डेफिनेट। फाइन, ओके, तो मजा आया। यस सर, डेफिनेट। आई हैव एंजॉयड। एक मिनट दीजिएगा, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।